इन टोटल 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस है। सो मैंने एज अ डेवलपर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर वर्क किया हुआ है। सो आई हैव वर्कड इन अकाउंट्स, सप्लाई चेन, ऑयल एंड गैस, एंड ऑल्सो इन बैंकिंग। बैंकिंग मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। Okay, so if I talk about my expertise, I am expert in Power BI. I have expertise in DAX, Power Query, Power BI service from UI side as well as from administration side. Similarly, I have also expertise knowledge, I can say, report server, Power BI report server, then paginator reports. Then if we go deeper into that, then we have REST APIs, embedded, and PowerShell. Apart from Power BI, I have expertise in the skills that I have mentioned. So I have expertise in Power Apps, Power Automate, Tableau, Advanced Excel, and SQL Server. So this is about myself. Small brief. मेरा total experience is around 7 years, which is across business intelligence and reporting. I am working in Power BI since last 1.2 years. Not really like comfortable with basics, but not really advanced. Then I have also experience into Tableau and SQL Server a bit, writing SQL queries. And my aspirations and basically my expectations from this entire module, entire course will be to have such a great experience of Rakesh as my knowledge, and also I can learn more skills and more Power BI so more MSBI stack, including SSIS and SSRS, which I can relate myself. Although I know ये training नहीं है उसके लिए, but then I probably can do it externally and relate things. So that is about. Okay, so actually I had experience. मेरा जो overall experience है around 6 to 7 years का. But most probably that was in operations. Exactly, that was not in analytics. तो 2020 से मैंने सोचा कि मैं फील्ड को स्विच करती हूँ. Then I became an intern for Power BI. I worked there, and presently, like this year, from April 2021, in Power BI projects. Also, I have got exposure in Power Automate. So I also created some of the flows for the client, which are already in production. तो Power BI का भी थोड़ा बहुत knowledge है, but definitely to increase that knowledge, I have a lot of expectation from Rakesh, and I know that definitely will help me to gain my knowledge through this. Yeah, so I'm having a total years of experiences, 5 years, and I'm also working into business intelligence and into reporting and dashboarding using Tableau and Power BI, but not into a DAX structure. So only basic knowledge I do have, and similarly I also have so many expectations from you, Rakesh. जी सर, बिल्कुल। तो अब मैं पावर बीआई की बात कर लेते हैं। पावर बीआई क्या है? हम जानते हैं वैसे पावर बीआई क्या है, काम किया हुआ है पावर बीआई में, सभी ने किया हुआ है, राइट? सो पावर बीआई के बारे में बताया जाए तो ये एक रिपोर्टिंग टूल है, जैसे हम जानते हैं, जिसमें पावर बीआई का जो मेन एक्टिविटी है इज जस्ट रिपोर्टिंग। जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो ये समराइज्ड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। आप इसमें डिटेल रिपोर्ट भी बना सकते हैं, पर जब किसी भी रिपोर्टिंग टूल की बात करें, भले ही वो एक्सेल ही क्यों ना हो, उसका मेन इंटेंट सिर्फ और सिर्फ समरी को दिखाना होता है, ना कि एक पूरा बल्क डेटा हो, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल है जो उसको होल्ड करते हैं और उसी के थ्रू हम दिखाया जा सकते हैं। मतलब अपना जो पूरा डेटा है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हम डेटाबेस में रख के और दिखा सकते हैं किसी को, अगर दिखाना चाहे तो। पर फॉर रिपोर्टिंग पावर बीआई जैसा टूल मार्केट में है, और जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को विजुअलाइज, उसको एनालाइज, उसमें से इंसाइट्स निकालना। जब हम कहते हैं इंसाइट्स, तो इंसाइट्स नॉर्मली किसी पैटर्न की फॉर्म में ही हम निकाल सकते हैं, कि जब हमारे पास डेटा होता है तो बहुत ज्यादा मतलब वेरी डिटेल लेवल पे होता है, या तो वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, पर बहुत डिटेल लेवल पे होता है। अब उसमें से पैटर्न को फाइंड आउट करना, उसके बाद ही इंसाइट या एनालाइज किया जा सकता है। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिसमें हम विजुअलाइज तो करते हैं, बट बाय वे ऑफ विजुअलाइजेशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पैटर्न जिसके थ्रू हम एक इंसाइट्स निकाल सकते हैं, और वो इंसाइट ही हमारा आगे डेटा साइंस की फील्ड में हेल्प करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि
data visualization is the initial layer towards your data insights और data scientist. So ये इसका काम करता है. Power BI एक नॉन टेक्निकल टूल है, तो इसके कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है. अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं पर आपको थोड़ा बहुत लाइक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो पावर बीआई आपके डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज में बहुत हेल्प कर सकता है टुवर्ड्स रिपोर्टिंग. सो जब मैं कहता हूँ ये नॉन टेक्निकल है या नॉन आईटी पीपल इसको इजीली इसको समझ सकते हैं, इस पे अपना एम्प्लॉयमेंट सोच सकते हैं, राइट? क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि अगर इसका आप UI देखते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू एक्सेल. मींस फॉर्मूलाज आर वेरी सिमिलर टू एक्सेल. इफ यू टॉक अबाउट ग्राफ्स, सो ग्राफ क्रिएशन इज वेरी इजी. सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप. जस्ट सेलेक्ट योर ग्राफ एंड ड्रैग द फील्ड्स, इट्स रेडी. इट्स लाइक दैट. बस इसमें कुछ एरियाज है जहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटा आपने जो विजुअलाइजेशन बना दी है उसको कैसे ब्यूटीफाई करें, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. यहाँ पे गेटवे या सर्वर साइड पे कुछ हैंडल करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, स्टिल यू नीड सम टेक्निकल नॉलेज, वो इसमें जरूरत पड़ेगी. तो दिस इज अबाउट पावर बीआई. नाउ व्हाट कम्स अंडर पावर बीआई. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं जो पावर बीआई से रिलेटेड है, बट ये सारे नहीं है, थोड़े बहुत है. जस्ट टुवर्ड्स इस कोर्स के कंटेंट के हिसाब से कुछ पॉइंटर मैंने हाईलाइट किए हुए. फॉर एग्जांपल, अगर हमको पावर बीआई से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हमें कोई रिपोर्ट डेवलप करनी है, लाइक एनी रिपोर्ट जो हमें पावर बीआई में डेवलप करनी है, सो हमें उसके लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है. देन हमारा डेवलप कंटेंट हम पावर बीआई सर्विस में भेजते हैं, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है. पर इस सर्विस में जब जो भी हम डेवलप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, राइट, उस डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जब भी कोई डेटा रिफ्रेश या डेटा अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होती है, उसके लिए हमें गेटवे चाहिए होता है. गेटवे इज अनदर, गेटवे भी एक सॉफ्टवेयर होता है लाइक पावर बीआई. बट जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम कोई भी कंटेंट बना सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म, मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, गेटवे में नहीं कर सकते. पर हाँ, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, गेटवे का काम अगर आप वैसे ओवरऑल लाइक इसका एक आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ये जस्ट एक परमिशन की तरह एक्ट कर रहा है, बट नहीं, ये अपने आप में ये पावर बीआई डेस्कटॉप ही है. इसका बैकग्राउंड पूरा पावर बीआई डेस्कटॉप जैसा ही है, पर उसको आप छेड़ नहीं सकते. लाइक यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद इट. ये भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी मॉडलिंग करता है, कैलकुलेशन रिफ्रेश करता है, मतलब ये भी वो काम करता है. इसमें हम बाद में डिटेल में आएंगे. उसके बाद अब हमारे पास आता है पावर बीआई प्रो और प्रीमियम. मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा. प्रो और प्रीमियम, ये इसमें से अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ, मैं पावर बीआई प्रो ये हमारा लाइसेंस है, प्रीमियम हमारा सब्सक्रिप्शन है. इसके बारे में डिटेल में जाएंगे. इन दोनों की दोनों टाइप ऑफ टेक्स्ट या कैटेगरी की मैं बात करूँ तो वेदर इट्स लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इन दोनों की ही जरूरत हमें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है. मैं अपना बनाया हुआ कंटेंट किसी के साथ ऐसे नहीं लाइक शेयर नहीं कर सकता, राइट? उसके लिए मुझे लाइसेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. देन ये हमारे पास पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, ये दो हमारे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, राइट? उसके बाद ही एंड यूजर अपना कंटेंट जाके देख सकते हैं. अब कंटेंट कंजप्शन के लिए भी हम कंजप्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने ये बता दिया. ये दोनों ही फॉर्म कंटेंट कंजप्शन के लिए भी यूज होते हैं, लाइक पीसी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं. देन वी हैव अनदर एप्लीकेशन कॉल्ड पावर बीआई मोबाइल ऐप. ये सिंपल लाइक एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप के थ्रू आप अपना कंटेंट अपने मोबाइल में डायरेक्टली देख सकते हैं. आपके लिए हो सकता है कि कुछ चीज आपको ऑलरेडी पता हो, पर मैं बेसिक और एडवांस थोड़ा मिक्स रखूंगा ताकि बोरिंग ना रहे. अब उसके बाद पावर बीआई के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने कवर कर ली. पावर बीआई इन अ बिग पिक्चर. सो पावर बीआई हम देखते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन की तरह लगता है, एक सिंगल एनवायरनमेंट लगता है, बट नहीं. आप इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, उसने पावर बीआई को इस अम्ब्रेला के अंडर रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म. इस अम्ब्रेला के अंडर हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है. ये होल बीआई सॉल्यूशन देता है, नहीं बीआई नहीं, बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन देता है माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म. इस पूरे बिजनेस प्रोसेस में हमारे पास पावर बीआई एज अ रिपोर्टिंग लेयर काम करता है. पावर एप्स हमारे लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब पोर्टल्स हो, राइट, उसमें हेल्प करता है.
पावर ऑटोमेट हमारा प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, कोई भी रिपीटेटिव टास्क या मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हेल्पफुल है। इसमें भी हमारे पास डेस्कटॉप आता है, देन वी हैव ऑनलाइन वर्जन ऑल्सो। हम दोनों का यूज करके हम अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। लास्टली वी हैव पावर वर्चुअल एजेंट, जो हमारा चैटबॉट की तरह वर्क करता है, जो कई सारी बैंकिंग साइट्स पे हमने देखा होगा चैटबॉट होता है। इवन हमारे ऑफिसेज में चैटबॉट होते हैं, लाइक कोई भी क्वेश्चंस है हमारे पास, हम डायरेक्टली चैटबॉट में डाल के अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तो सिमिलरली यूआई फीचर का यूज करके हम यूआई फीचर और वर्चुअल एजेंट का यूज करके हम अपने चैटबॉट बना सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द पावर बीआई इंट्रोडक्शन। इसमें मेरा क्वेश्चन है, यस, पावर ऑटोमेट और पावर वर्चुअल एजेंट को हम मतलब जैसे आपने यहाँ बताया यहाँ यूज कर सकते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसके साथ, तो मतलब हम यूज कहाँ कर पाएंगे मेनली अगर रूटीन में करें भी तो? ओके, चलिए ठीक है। इसके रिगार्डिंग में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक लीव रिक्वेस्ट पोर्टल आप अज्यूम कर लीजिए, एक पूरा प्रोसेस होता है, हर एक बिजनेसेस में होता है। एक एम्प्लॉय होता है जो अपनी लीव की रिक्वेस्ट डालता है। अभी हम क्या करते हैं, या तो मेल करते हैं या किसी पोर्टल पर डालते हैं, राइट। अगर कोई ऐसे बिजनेस को आप अज्यूम करो जहाँ पे इस तरह का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसमें क्या करते हैं यूजर्स, क्या करते हैं अपने सुपरवाइजर को एक मेल डालते हैं, सुपरवाइजर उस मेल को रीड करता है, उसके बेसिस पे अपना अप्रूवल वगैरह देता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका डेटाबेस कहाँ है, लाइक अगर मेरे को चेक करना हो कि एक पूरे मंथ में कितने नंबर ऑफ लाइक एम्प्लॉइज ने लीव के लिए अप्लाई किया है, उनमें से कितनी लीव आपकी रिजेक्ट हुई है, कितनी अप्रूव हुई है, राइट। तो इसके लिए अगर पूरा बनाना पड़े तो मैनेजर को या सुपरवाइजर को ये पूरा मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट। पर अगर इस पूरे ही प्रोसेस को अगर मैं इसको ऑटोमेट करना चाहूँ, जिसमें मैं लीव की रिक्वेस्ट डालना, उसको अप्रूव रिजेक्ट करना, राइट, उसकी रिपोर्टिंग करना, डेटाबेस रखना, ये सब पूरा अगर रखना हो तो कहाँ रखना चाहिए, मतलब कैसे बनाऊं मैं, राइट। इसके लिए फिर पूरा आईटी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, फिर सॉल्यूशन बना के देंगे। उसमें मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 3 से 4 महीने तो यूं ही लग जाएंगे। अगर बाई चांस इन बिटवीन कोई रिक्वेस्ट आगे चेंज की तो फर्दर 1 महीना 2 महीना और लग जाए, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आईटी टीम को एक वेब पोर्टल बनाना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, काफी सारा काम हो जाएगा। अभी सारी की सारी चीज, ये 4 एप्लीकेशन को हम इस प्रोसेस में कैसे फिट कर सकते हैं। आप अज्यूम करिए कि एक न्यूबी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको एक लीव की रिक्वेस्ट डालनी है, उसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है, राइट। तो वो क्या करेगा, पावर वर्चुअल एजेंट यूज करेगा, मतलब उसको एक चैटबॉट मिलेगा, उस चैटबॉट का यूज करके एक सिंपल क्वेश्चन डालेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर लीव। चैटबॉट एक सिंपल एक रेस्पॉन्स देगा उसको, उस रेस्पॉन्स पे उसको एक यूआरएल दे देगा। अब यूआरएल किस चीज का होगा, पावर एप्स का होगा, पावर एप्स के पोर्टल का एक्सेस होगा, राइट। वो सिंपल उस पे लिंक पे क्लिक करेगा, वो पावर ऐप के आपके लाइक एप्लीकेशन पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है। उस पावर ऐप के इस्तेमाल से जो बैकग्राउंड की टीम ने जो एक पोर्टल बनाया होगा, उस पोर्टल पे उसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, लाइक उसका मैनेजर कौन है, वो किस दिन के लिए लीव अप्लाई कर रहा है, रीजन फॉर लीव, राइट, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए लीव अप्लाई कर रहा है, इस तरह की डिटेल वो फिल करेगा उधर, ठीक है। ये इस पावर एप्स के पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। जैसे उस पर वो क्लिक करेगा, विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट, राइट, एक सिंपल ईमेल ट्रिगर हो जाएगी उसके मैनेजर को, राइट। उसके मैनेजर को उसके मेल बॉक्स में ही मतलब मेल बॉक्स में सिंपल सा एक मेल बन के उसको मिल जाएगी, जिसमें जिस एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट की है लीव के लिए, वो प्रॉपर उसमें फील्ड होगी विद रीजंस और ऑल द फील्ड जो उसने पहले स्पेसिफाई करी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजर के पास अगेन एक लाइक मेल में एक यूआरएल होगा या एक ऑप्शन और होगा, राइट। उस पे वो अपना अप्रूवल येस और नो के फॉर्म में दे सकता है, या सिंपली उस यूआरएल पे क्लिक करके अगेन वो इस पोर्टल में चला जाएगा। उस पोर्टल पे अगेन उसके लिए एक मैनेजर के लिए अलग से एक पोर्टल होगा, मतलब अलग से पेज होगा उस पोर्टल में, जिसमें वो उस लीव को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अब इस टू एंड फ्रो ऑफ मेल से जो डेटा जनरेट हो रहा है, लाइक किस यूजर ने लाइक लीव की रिक्वेस्ट रेज करी थी उसका डेटा, फिर उसके बाद मैनेजर ने उसे अप्रूव किया नहीं किया उसका डेटा, क्योंकि ये तो एक दिन की एक्टिविटी, राइट। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत सारा डेटा बन सकता है, क्योंकि लीव तो रोज अप्लाई होती रहती है, राइट, और उसमें कई सारे रिजेक्ट जाती हैं। अब उसकी अगर मैं एज अ सीईओ बात करूं कि भाई मेरे को पूरा ह्यूमन रिसोर्स की लीव मैनेजमेंट देखनी है, कि हम कितने लीव अप्रूव करते हैं, कितनी लीव रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें से कितनी रिजेक्ट हो जाती हैं, राइट। ये अगर हम मॉनिटर करना चाहें तो एक रिपोर्टिंग चाहिए हमें।
और रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास डेटाबेस भी होना चाहिए, करेक्ट। सो इस पूरे प्रोसेस में क्या है, हम चाहें तो एक कॉमन डेटा सर्विस होती है CDS कहते हैं जिसको, वो पावर एप्स या मतलब इस पूरे आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। उसमें हम डेटा डंप कर सकते हैं या फिर हम SQL का एक डेटाबेस बना के उसमें डंप कर सकते हैं और उसमें डंप करने के बाद हम पावर BI में उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मतलब पूरा ही चारों के चारों एप्लीकेशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ओके, कॉमन, यस, हाँ, ओके, कॉमन डेटा मॉडल कह लो या कॉमन डेटा सर्विस कह लो। समझ में आया आपको? हाँ समझ आ गया। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ आपसे तो आप मुझे ये बताइए कि लाइक इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने लीव मैनेजमेंट पे बनाया ना, अगर मैनेजर ने लीव रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया है, ठीक है, तो कौन से एप्लीकेशन का यूज कर रहा है अप्रूव करने के लिए, मतलब या बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन? पावर एप्स। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका राइट है ना आंसर? हाँ, पावर एप्स, बिल्कुल पावर एप्स। तो राकेश जी एक चीज और है, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था इसीलिए सिर्फ रिकन्फर्म कर रहा हूँ, CDS और डेटावर्स इज सेम थिंग क्या? स्टैंडिंग वो सेम ही चीज है। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, टर्म्स बदलता रहता है। ओके, गॉट इट। और एक लास्ट चीज और, अब जैसे अगर हम कहते हैं कि जो डेटा इसके साथ टू एंड फ्रो हो रहा है वो कहीं पे जाके डिपॉजिट होता है CDS में, तो क्या पावर BI के अंदर गेट डेटा में हमारे पास CDS का भी कोई कनेक्टर होता है ताकि हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं? डेटावर्स की फॉर्म में, डेटावर्स के फॉर्म में होता है। ओके, CDS का होता है कॉमन डाटा सर्विस। ओके, गेट डेटा में ओके, कॉमन डाटा सर्विस करके वहाँ होता है। हाँ जी, ओके, तो फिर आप लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम पूरे पावर BI का आर्किटेक्चर देख लेते हैं, मतलब चीजें कैसे फ्लो करती हैं, ठीक है। सो स्टार्ट हम करते हैं डेस्कटॉप से, जिसमें हम अपना पूरा डिजाइन कर लेते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं, राइट। उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और जब हम पब्लिश करते हैं तो गेटवे का रोल आता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में नहीं आता है। इसकी डिटेल भी मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी ये हम मानते हैं कि गेटवे का रोल है। अगर हम पब्लिश करते हैं तो डायरेक्टली क्लाउड पे चला जाता है, क्योंकि पब्लिश के टाइम पे गेटवे का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो क्लाउड पे हमने इसको पब्लिश कर दिया। एंड नाउ क्लाउड पे जाते ही अब मेरा जो मेरा यूजर है, राइट, वो चाहे तो पीसी के थ्रू से कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने पीसी से क्लाउड को एक्सेस कर सकता है, वो अपने मोबाइल या टैबलेट से उसको एक्सेस कर सकता है। अब जो रिपोर्ट पावर BI सर्विस पे आ चुकी है, राइट, अब उस रिपोर्ट को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उस पर डेटा अपडेट होना चाहिए, तभी उस रिपोर्ट की कोई यूसेज बन के आएगी, एल्स उस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं। तो सिस्टम पूरे होल सॉल्यूशन को ऑटोमेट कर देता है बाय यूजिंग शेड्यूल रिफ्रेश ऑप्शंस, जिसमें वो क्या करेगा, गेटवे का यूज करके डेटा सोर्स को एक्सेस करता है, राइट, और गेटवे का यूज करके डेटा कॉल करता है कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर ग्राफ को रिफ्रेश करना है, इसके बैकग्राउंड में जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसको रिफ्रेश करना जरूरी है। मतलब चेक करो कि एज पर मतलब आज के हिसाब से कोई नया डेटा है अवेलेबल डेटा सोर्स में या नहीं, ठीक है। वो मॉडलिंग और पावर क्वेरी में डिफाइन करते हैं उस चीज को। गेटवे उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसके बाद वो आपको डेटा सोर्स को भेजता है। डेटा सोर्स उस गेटवे की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है और गेटवे को रिक्वेस्ट भेजता है कि जी दिस इज योर अपडेटेड डेटा। नाउ तो गेटवे क्या करता है, क्योंकि डेटा सोर्स ने गेटवे को डेटा दिया, गेटवे ने उस डेटा पे कैलकुलेशन लगाई, मॉडलिंग वगैरह करी और पावर BI को भेज दिया। और पावर BI सर्विस अब यहाँ पे रेंडरिंग का काम कर रहा है, मतलब फिर से ये फ्लो आ गया। मतलब ये वाला एरिया आफ्टर पब्लिशिंग इसका लीस्ट रोल हो जाता है। इसका रोल आता है तब, फॉर एग्जांपल, अगर कोई बग आ गया, रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है या कोई चेंजेस करनी है, मेंटेनेंस के लिए अगर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है डेस्कटॉप, एल्स इसका आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर पब्लिशिंग इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इस पोर्शन में। फिर इतना ही आर्किटेक्चर रह जाता है। कोई क्वेश्चन में आर्किटेक्चर से लेके? इसमें गेटवे का क्वेश्चन था, जैसे हमें जो गेटवे इंस्टॉल करना है वो सेम सर्वर में ही होना चाहिए जहाँ पे हमारी पावर BI रिपोर्ट्स हैं, या फिर कहीं किसी भी सर्वर में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या ये वर्क कैसे करता है? गेटवे के बारे में हमारे पे डेडिकेटेड स्लाइड है, तो अब ज्यादा नहीं कवर करूंगा। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हम किसी भी सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं गेटवे को,
बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा वो गेटवे जो जिस सर्वर पे आप इंस्टॉल करें वो विंडोज का सर्वर होना चाहिए, लाइक लाइनक्स का यूनिक्स का सर्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लाइनक्स और यूनिक्स वाले जो सर्वर्स होते हैं वो .exe इंस्टॉलेशन सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको फिर भी किसी वजह से अगर लाइनक्स पे या यूनिक्स पे इंस्टॉल करना पड़े, लाइक मैं iOS का भी एग्जांपल दे दूं, मैकबुक में अगर इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉरी मैकबुक के सर्वर पे अगर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको VM के थ्रू ही आप कर सकते हो उस केस में। और अगर अब क्वेश्चन आता है कि किस सर्वर पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि किसी भी विंडोज के सर्वर पे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, मैं गेटवे की बात कर रहा हूँ, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब जो नियरनेस जिसको हम बोलते हैं, कि डेटा और गेटवे आपस में बहुत क्लोज होनी चाहिए, मतलब सेम रीजन में होनी चाहिए। लाइक मुंबई में ही अगर मेरा डेटा वेयरहाउस है, राइट, मेरा सर्वर मुंबई में ही है, तो मेरा गेटवे भी मुंबई में ही होना चाहिए। पर वो सेटअप करते वक्त ऑप्शन मिलता है क्या कि हमें कौन से सर्वर पे इसको सेटअप करना है गेटवे को? यस, जब ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है ना इंस्टॉल करने का कि कहाँ इंस्टॉल करना है, अपने बिल्कुल या कौन से सर्वर पे करना है, राइट। बिल्कुल उसी मैनर में गेटवे भी एक .exe फाइल होती है, ठीक है। इस .exe फाइल को किसी भी सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, बस वो विंडोज का सर्वर होना चाहिए या फिर विंडोज का VM होना चाहिए। ओके, इसका बाद में एक बार इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं क्या राकेश? यस यस यस, मैं आप लोगों से करवाऊंगा अभी, मतलब किसी एक से या जो भी लाइक इस चीज के लिए नॉमिनेट करेगा अपने आप को, मैं उसके सिस्टम पे पूरा सेटअप करवा दूंगा गेटवे। ठीक है ठीक है। एक चीज और बस आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि पावर बीआई सिर्फ आपके इस पे नहीं चलता है, सॉरी मैकबुक और इन सब पे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग iOS एज अ प्लेटफॉर्म, तो इज इट बिकॉज अ कंपनी लेवल इशू कि माइक्रोसॉफ्ट डजंट वांट इट्स प्रोडक्ट्स टू गो टू एप्पल और समथिंग? नहीं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं, ये एप्पल की तरफ से। ओके, तो ऐसा क्यों है, मतलब एनी स्पेसिफिक रीजन कि ये क्यों नहीं होता है? तो आपको इतना तो पता है कि जो एप्पल है सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा होते हैं उसके, राइट, वो किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट को अगर कुछ अपने किसी एप्लीकेशन में किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट ऐड करना है या फीचर ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो विदाउट उसकी परमिशन के वो नहीं कर सकता उस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पावर बीआई में एसक्यूएल के एसएपी के कनेक्टर्स देखे होंगे या ओरेकल के कनेक्टर्स देखे होंगे, राइट। अब वो कनेक्टर्स पावर बीआई में इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि उस कनेक्टर को बनाते टाइम, राइट, जो जो इंटरनली बैकग्राउंड में जो डेटा एक्सचेंज होता है, जो क्रेडेंशियल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो एपीआईज कम्युनिकेट करते हैं आपस में, राइट, तो उसका सेटअप और उस हार्मनी वो होनी चाहिए। अगर दोनों ही कंपनी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती या वैलिडेट नहीं करती इस रिक्वेस्ट को, सॉफ्टवेयर क्रिएशन का फायदा नहीं हो पाएगा, मतलब कामयाब नहीं हो पाएगा। आपने देखे होंगे पावर बीआई में कनेक्टर्स तो बहुत सारे, लाइक डेटा को एक्सेस करने के बहुत सारे कनेक्टर्स, पर मार्केट में एप्लीकेशन भी उसके हिसाब से बहुत सारी है, ठीक है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर 50 कनेक्टर्स अवेलेबल कराता है तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके कनेक्टर्स पावर बीआई में है ही नहीं, करेक्ट। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक सॉफ्टवेयर जो वेंडर्स होते हैं उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट की डीलिंग नहीं है, वैसे उन टर्म्स पे उनकी डीलिंग नहीं। अगर डीलिंग नहीं है तो मतलब एक लाइक कोलैबोरेशन के थ्रू उन्होंने कॉमन कनेक्टर नहीं बना पाए इस वजह से। एक लास्ट चीज और, अभी जब भी डेटा किसी भी हमारे OLTP सिस्टम्स या OLAP सिस्टम्स में फ्लो करता है, वो किसी सोर्स सिस्टम से आता है, राइट, जैसे कुछ भी हो सकता है वो सोर्स सिस्टम। तो जो पावर बीआई के जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सिर्फ हमारे OLAP सिस्टम को हिट करते हैं, राइट, OLTP को हिट नहीं करते, कि हमें सोर्स सिस्टम से ही डायरेक्ट करना है। कर लेते हैं OLTP भी तो है, SQL सर्वर हमारा OLTP तो है। ओके, SQL सर्वर इज OLTP, ओके। जैसे मैंने पहले बताया कि पावर बीआई एक समरी टूल है, लाइक समराइज करता है चीजों को, ठीक है। OLTP में क्या होता है, डिटेल लेवल होती है, लाइक एक मल्टीपल ट्रांजैक्शन लेवल का डेटा आता है, ठीक है, पर हम जब रिपोर्ट दिखा रहे हैं डे वाइज नहीं दिखाते हर टाइम, हम कई बार मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, इवन ईयर वाइज दिखाते हैं, करेक्ट। तो डे वाइज की जब जरूरत नहीं है तो उस डेटा को फेच करके पावर बीआई में लाना और रखना
नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अब रिपोर्ट डेवलपमेंट फेज आप सबको पता है कैसे होता है, राइट? मैं थोड़ा सा अपने लेवल पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है वो एक्सप्रेस कर देता हूँ। जब भी हम रिपोर्ट डेवलप करते हैं तो फर्स्ट पार्ट होता है डेटा इंजेक्शन। इट्स डेटा इंजेक्शन यूजिंग डेटा कनेक्टर्स, मतलब पावर बीआई में डेटा को लेके आना। जब पावर बीआई में डेटा को लेके आते हैं जब, सो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो डेटा हम लेके आए हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। वो चांसेस हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, चांसेस हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, चांसेस हैं कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है? ये तीनों ही स्कोप हो सकते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है बट हमें सारे कॉलम्स या सारे रिकॉर्ड्स की जरूरत ही नहीं होती। उस केस में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पावर क्वेरी से करते हैं उसका यूज करते हैं। मतलब डेटा को शेप देना, उसको मसाज करना, मैनिपुलेट करना अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो उसके लिए हम पावर क्वेरी या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी यूज करते हैं। ओके, डेटा को शेप देने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट फेज रह जाता है वो है डेटा को मॉडल करना, रिलेशनशिप और कैलकुलेशन करना उसमें, ठीक है? अब जब आप कहते हो मॉडलिंग करना, मतलब उसमें आप कैलकुलेशन ऐड करते हो, बिजनेस लॉजिक लगाते हो बाय वे ऑफ कैलकुलेशन, आप रिलेशनशिप को ऐड करते हो, मतलब डिफाइन करते हो बैकग्राउंड में, उस पे आप अपनी कैलकुलेट कॉलम्स, देन अपने मेजर्स वगैरह बनाते हैं, मतलब बिजनेस लॉजिक को लगाते हो, उसके बेसिस पे रिलेशनशिप डिफाइन करते हो बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, और बेस्ड ऑन दैट आप आगे प्रोसीड करते हो। फिर नेक्स्ट आता है मॉडलिंग भी कर ली, बिजनेस लॉजिक भी लगा दिया, अब नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट क्रिएशन और विजुअलाइजेशन कंट्रोल। रिपोर्ट बनाने के बाद कई सारे विजुअलाइजेशन कंट्रोल चाहिए, लाइक आपने टॉप में एक फिल्टर देना है, एक ड्रॉप डाउन देना होता है, एक नेविगेशन सपोर्ट देना है, लाइक बटन पे क्लिक किया तो इस तरह का पॉपअप आया या दूसरे पेज पे ले गया या बुकमार्क ने रन किया, राइट? इस तरह का, या बटन पे क्लिक करते ही डेटा एक्सपोर्ट हो गया, इस तरह के ऑप्शंस। तो दैट इज योर विजुअलाइजेशन कंट्रोल्स, जो हर एक बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे हम ऐड करते हैं। रिपोर्ट बन गई है, इट्स रेडी नाउ। सो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कंटेंट शेयरिंग। तो जो कंटेंट आप बनाते हो आप एंड यूजर के लिए बनाते हो। अब कंटेंट को जब शेयर करना होता है, मतलब पब्लिश करके किसी एरिया पर डालते हो, सो वर्क स्पेस में आप डालते हो और पावर बीआई ऐप में डालते हो, ठीक है? वर्क स्पेस मेनली इन दोनों के बारे में ही बताऊंगा, पर थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। वर्क स्पेस जो वर्क स्पेस इज फॉर डेवलपर्स एंड ऐप इज फॉर यूजर्स। ये बाय प्रैक्टिस इसको याद रखिए, ठीक है? वर्क स्पेस में अपना कंटेंट डालते हैं और जो कंटेंट हम वर्क स्पेस में पब्लिश कर देते हैं उस कंटेंट को हम पावर बीआई ऐप में दोबारा डालते हैं, दोबारा पब्लिश करते हैं, मतलब सेकंड लेयर ऑफ पब्लिशिंग है। अब यहाँ पे पावर बीआई ऐप की जब मैं बात करता हूँ, इसको आप पावर बीआई मोबाइल ऐप से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये दोनों ही अलग अलग चीजें। ओके, पावर बीआई ऐप एंड यूजर्स के लिए होता है, ये एक और स्पेस होता है पावर बीआई सर्विस में, मतलब अलग से एक एरिया इन पावर बीआई सर्विस जहां पे आप कंटेंट डालते हैं और सिर्फ एंड यूजर्स के लिए ही वो एरिया होता है, मतलब वो उस डायरेक्टली सीधा पावर बीआई ऐप में जाके ही अपना कंटेंट देखते हैं, ठीक है? और पावर बीआई मोबाइल ऐप बोले तो आपका सिर्फ एंड्रॉइड या आईओएस एप्लीकेशन, मतलब मोबाइल्स में जाके उस एप्लीकेशन में जाके अपना कंटेंट देखें। तो दोनों ही अलग अलग हैं आपस में। अब नेक्स्ट आता है कंटेंट कंजप्शन जो एंड यूजर करता है, वो डेस्कटॉप के थ्रू, टैबलेट। लाइक ये पावर एप्स वही है ना, मतलब इसमें हम काफी सारी रिपोर्ट्स को एक साथ हम डाल सकते हैं, लाइक एक ग्रुप बन जाता है सर्विस में, है ना? ऐसे ही होता है, ठीक। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहे। तो ये पावर बीआई सर्विस है आपकी, ठीक है? बॉटम में आप देखेंगे वर्क स्पेसेस लिखा हुआ है, टॉप पे आप देखेंगे तो एप्स लिखी हुई है। जो वर्क स्पेस है दिस इज फॉर डेवलपर्स, और एट टाइम्स हम क्या करते हैं, एंड यूजर को भी यहाँ ले आते हैं। आइडल प्रैक्टिस नहीं है। जो एप्स होते हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया इज फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर को इस एरिया में आना चाहिए ऑलवेज। इसका यूज क्या होगा फिर राकेश जी? तो और थोड़ा डिटेलिंग दूं अगर मैं, एज अ डेवलपर आपको पता है कि रिपोर्ट क्या है, डेटा सेट क्या है, डेटा फ्लोस क्या है, आइकन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सारी चीजें आ गई, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे एंड यूजर के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसको नहीं पता कि इस पे क्लिक करना है कि इस पे क्लिक करना है। अगर उसको सेम नेम दिखता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको सेम नेम दिख गया, अब वो कलर के हिसाब से नहीं जाता, कई बार वो सीधा क्लिक कर देगा नाम देख के, उसके लिए ये एरिया कंफ्यूजिंग है। और दूसरा, उसको ये चाहिए कि डायरेक्टली क्लिक करे और उसकी रिपोर्ट खुल जाए, मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए सारे रिपोर्ट्स का आपस में।
मतलब क्लिक पे ही हो जाए सारा काम, उसको इस तरह के लिस्ट में ना जाना पड़े, उसकी गलती से वो ये ना कर दे, मतलब वो किस लाइक उसके डिपेंडिंग अपॉन उसके एक्सेस के हिसाब से तो हो सकता है कि एंड यूजर को अगर आप वर्क स्पेस पे लेके आते हो तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एंड यूजर का काम होता है सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे उसकी रिपोर्ट आए, उसको ये सारा मैस ना देखना पड़े। अगर आप सीधा इसकी भी बात करते हो स्टिल यहाँ पे भी उसको मैस लगेगा, क्योंकि उसके लिए सब चीजें अलग अलग हैं, सबके लिए अलग से पेज आएगा, उसके लिए सिर्फ बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटा डैशबोर्ड टेस्ट कर दूं, अब मुझे बैक जाना है, अब वो यहाँ पे बैक करेगा, तो उसके लिए टू एंड फ्रो ज्यादा हो जाता है। जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं लाइक यूएस के लोग ले लो या यूरोप के लोग ले लो, राइट, तो उनको इतना बैक एंड फोर्थ नहीं जाना, ठीक है, उनको सिंपल एक ऐसा यूआई चाहिए जिसमें वो एक ही एरिया पे रहे, बैक एंड फोर्थ ना करना पड़े, उसी से ही सारा काम हो जाए। नहीं, मैं यही सुन रहा था कि एक्चुअली मेरे को पावर ऐप का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही मैं ध्यान से सुन रहा था कि कैसे वर्क करता है, क्या सिस्टम। चलो ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जिससे मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी। पावर बीआई ऐप और वर्कस्पेस के बीच में सिर्फ 2 डिफरेंस बताइए जो आपको समझ में आया। ओके, वर्कस्पेस पे ये क्या होता है कि जैसे हम कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो वो पब्लिश होती है वर्कस्पेस में, और उसके बाद हम पावर ऐप में वर्कस्पेस के थ्रू लेते हैं जो भी हमने रिपोर्ट क्रिएट करी है, फिर पावर ऐप में हम उसको मतलब यूजर को थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पे, ये वैसे गलती माइक्रोसॉफ्ट की है सिर्फ टर्म्स ही ऐसे ले रखे हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको पावर ऐप मत बोलिए, ये पावर बीआई ऐप है। पावर ऐप अलग से एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, पावर बीआई ऐप है। यही मेरे को एक्सपीरियंस मतलब जो इसके वो लगे पॉइंट्स। ओके, तो वर्कस्पेस का फर्स्ट ये है कि वर्कस्पेस जो है डेवलपर्स के लिए बेसिकली, उसमें मुझे सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी, डेटा सेट्स, बट मतलब एप्स में मैं देखूंगी तो मुझे मैंने एंड यूजर के लिए बनाया तो उसको मतलब बहुत सारी चीजें ना दिख के जो मैं चाहती हूँ एंड यूजर देखे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो उसको वही दिखेगा, मतलब रिपोर्ट बेसिस पे दिखेगा। करेक्ट, यही है। दूसरा नहीं, दोनों ही बताते अरे मैं सोच रही हूँ दूसरा, मतलब ये लेस कंफ्यूजिंग होगा अगर मैं देखूं, मतलब विजुअलाइजेशन पार्ट में ही मेन इसका डिफरेंस है, अदरवाइज मेरा डेवलपर को तो सभी कुछ देखना होता है, डेटा सेट चेंज करना, रिफ्रेश, इसमें ये नहीं होगा। प्लस इसमें डेटा रिफ्रेश मुझे नहीं करना पड़ेगा, जब मेरा वर्कस्पेस रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा ऐप। वर्कस्पेस में अगर मैंने कोई डेटा सेट में चेंज कर दिया, कोई मेजर चेंज कर दिया, तो जाके मेरे को ऐप में चेंज करना है, अदरवाइज वो समझ जाएगा भाई कि मेरे वर्क इसमें चेंज हुआ है किसी भी रिपोर्ट में, ऐप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। और बस लास्ट एक पॉइंट होगा एक्सेस का। वर्कस्पेस में 4 एक्सेस होते हैं, एडमिन एंड कंट्रीब्यूटर एंड 2 और होते हैं, मैं भूल गया नाम, कंट्रीब्यूटर, मेंबर, और उसमें सिर्फ एक रीडर राइट्स होते हैं एप्स। राइट कर सकते हैं आप। यस, चलो थोड़ा एक्सेस में मैं भी क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐप की बात करते हैं तो आप सिर्फ यूजर्स को एज अ व्यूअर का ही एक्सेस दे सकते हैं, उस पर कोई कंट्रीब्यूटर, मेंबर और आपका एडमिन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पर आप अगर वर्कस्पेस की बात करते हैं, क्योंकि वो डेवलपर एरिया है, करेक्ट, सो आप किसी तरह के भी यूजर को ऐड कर सकते हैं, वो एडमिन भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूटर, मेंबर या व्यूअर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। तो कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है पूछना, ठीक है। ओके, ठीक है। इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाइए। सो हाँ, कंटेंट कंजम्पशन की बात कर रहे थे। सो एंड यूजर के पास रिपोर्ट तो आ गई, या वो देखेगा कैसे? अब उसके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसके थ्रू देख सकता है, ब्राउजर पे जाके, टैबलेट में देख सकता है ऐप की मदद से, मोबाइल में भी देख सकता है ऐप की मदद से, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अब लास्टली लाइसेंस एंड प्राइसिंग आ जाती है, मतलब आपने कंटेंट बना लिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के लाइसेंस प्राइसिंग तो चाहिए ना, तो लाइसेंस और उसकी प्राइसिंग, तो इसके बिना बाकी चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में थोड़ा बहुत ब्रीफ करूंगा, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम बाद में चलेंगे, मतलब आगे की स्लाइड्स में है। ओके सर एक क्वेश्चन सर, राकेश सर, एक क्वेश्चन, जो आपने बताया कि या तो जो भी कंटेंट हमने पब्लिश किया है उसको या तो हम डेस्कटॉप से या अपने टैबलेट या फोन से देख सकते हैं, तो जब हम पावर बीआई का अपने डेस्कटॉप क्लाइंट टूल यूज करके रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका रेजोल्यूशन डेस्कटॉप लेवल पे होता है, तो जो हमने पब्लिश किया होता है डेस्कटॉप पे वो इजीली दिख जाता है,
तो हाँ क्या जब हम उसी चीज को लैपटॉप या टैबलेट पे देखेंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है टैबलेट व्यू या मोबाइल व्यू में, या उसका हमें टैबलेट वर्जन और मोबाइल वर्जन सेपरेटली क्रिएट करना पड़ता है? ओके। सो वैसे अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप से कुछ बनाया है, आप उसको आप मोबाइल के थ्रू देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल। आपको कोई कमी नहीं दिखेगी उसमें, रेजोल्यूशन फिर भी बहुत अच्छा आएगा, यू कैन जूम इन जूम आउट। पर अगर आप मोबाइल में अपना कंटेंट डायरेक्टली कंज्यूम करते हो और मोबाइल में ही देखना शुरू कर दिया आप, ठीक है, सो जो भी व्यू आपने पीसी पे देखा था बिल्कुल एज इज व्यू आपके मोबाइल में भी आएगा, ठीक है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बट वो इंटरेक्शन जो होती है ना, जो आप एक मोबाइल में आपको टच के बेस पे इंटरेक्शन की आदत है, उसमें थोड़ा बहुत लैग आपको दिखेगा, कोई थोड़ी कमी लगेगी आपको। सो जस्ट टू हैंडल दैट, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एडिशनल एक एक्टिविटी, मतलब एज पर माइक्रोसॉफ्ट आपको अलग से एक लेआउट और बनाना होता है फॉर मोबाइल व्यूइंग, ठीक है। उस लेआउट में आपको कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा खास, मतलब कुछ हार्ड कोड डेवलपमेंट नहीं करनी उसके लिए, ठीक है। वो सिंपली जो ऑब्जेक्ट आप बना चुके हो, जो लाइक विजुअल्स, ग्राफ, नेविगेशन सपोर्ट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको एक अलग से लेआउट में बस रीडिजाइन, मतलब रीफिट करना है, कहने का एक मोबाइल के लेआउट के फॉर्म में रीफिट करना है। जैसे वो रेडी हो जाता है, अब जब भी कोई यूजर पावर बीआई सर्विस में जाता है तो उसको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है कि वो वेब व्यू से मोबाइल व्यू में शिफ्ट कर सकता है। तो उसके लिए फिर एक मोबाइल इंटरेक्शन इजी हो जाता है उस केस में, मतलब रीडेफिनेशन हो गई अब, तो रेजोल्यूशन तब उस केस में मोबाइल के लिए एक एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे ही पूछता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है, थोड़ा मुझे ही पता चलेगा आपको कैसे पता है, ठीक है। पावर बीआई प्रो, ठीक है, पावर बीआई फ्री, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर, और पावर बीआई प्रीमियम एंड पावर बीआई एम्बेडेड। पावर बीआई फ्री में जैसे कुछ मतलब कुछ डेज होते हैं, जैसे तब तक यूजर जो है, जो डेवलपर है उसमें Okay. मतलब यूज कर सकता है, उसकी फैसिलिटीज को यूज करके फॉर लाइक लिमिटेड डेज उसको यूज कर सकता है। और पावर बीआई जो प्रो है वो शायद $9 का होता है मंथली उसकी जो है। Okay. और उसमें लिमिटेड जो एक्सेस है वो मिलता है उसमें, और उतना ही मतलब डाटा सेट का भी कुछ लिमिट होती है उसमें, कि उतना ही डाटा सेट का जो होगा वो मतलब हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे ही पब्लिश का इसमें भी कुछ इश्यू, मतलब लिमिटेड एक्सेस होता है। हाँ. और प्रीमियम में क्या होता है कि इसमें जैसे यूजर्स, काफी यूजर जो एक्सेस कर सकते हैं प्रीमियम वर्जन को। Okay. और कैपेसिटी भी बढ़ती है इन रिलेटेड टू डाटा सेट, इन टर्म्स ऑफ डाटा सेट। इतना ही नॉलेज है। ओके, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। प्रीमियम जो फ्री वर्जन होता है उसमें तो मतलब 60 डे का आई थिंक ट्रायल होता है। और Okay. इसमें मैं मतलब फ्री में आई थिंक हम रिपोर्ट को मैं वर्क शेयर नहीं कर सकती हूँ। और प्रो में लाइक उसमें शायद 10 GB स्पेस होता है लगभग। और हाँ जी, हाँ, तो जो भी पता है बता दो। और वही कैपेसिटी का होता है और शेयरिंग का भी होता है आई थिंक। प्रीमियम में आई थिंक मैं इसमें रिपोर्ट को, प्रीमियम है तो मैं फ्री के साथ भी उसको शेयर कर सकती हूँ, फ्री यूजर के साथ। Okay. और कैपेसिटी सम टेराबाइट के होती है प्रो में, प्रीमियम में नहीं, प्रीमियम पर यूजर और प्रीमियम में। एम्बेडेड का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, फ्री वर्जन फर्स्ट वर्जन होता है। जब भी कोई डोमेन नेम से लॉगिन करता है तो उसको सबसे पहले फ्री वर्जन मिलता है, उसके बाद उसको 60 डेज का प्रो में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, एंड उसके बाद आई गेस 90 डेज का ट्रायल वर्जन मिलता है पीपीयू के लिए। और प्रो के अंदर देयर इज वन थिंग कि हाँ, और फ्री में हम लोग को कंटेंट शेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। देन प्रो के अंदर देयर इज 1 GB ऑफ डेटा मॉडल साइज विच इज द लिमिटेशन। आई एम नॉट श्योर रैम की साइज कितना है उसमें और टोटल साइज कितना होता है। देन प्रीमियम के अंदर 25 GB इज रैम सपोर्ट,
1 terabyte is total support and 10 GB is your data model size का support. देन मैं अगर एक वर्क स्पेस को आइडेंटिफाई करने की बात करूं तो अगर प्रीमियम वर्क स्पेस है तो उसके आगे डायमंड का साइन बना हुआ आता है, प्रो वर्क स्पेस है तो उसके आगे डायमंड प्लस एक यूजर का साइन बना हुआ आता है. आई गेस दैट इज फॉर प्रीमियम पर यूजर या प्रो, आई एम नॉट श्योर. और बेसिक में कुछ नहीं आता है. एक्चुअली यहाँ पे दो कैटेगरीज आ जाती है, एक लाइसेंस की कैटेगरी आती है, एक सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी आती है. ठीक है, पावर बीआई फ्री, पावर बीआई प्रो, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर, ये तीनों जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, दीज आर लाइसेंसेस. चलो मैं ले जाता हूँ पहले. तो पहले हम लाइसेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे. लाइसेंस में जो पहला आता है पावर बीआई फ्री, हमारा लाइसेंस है. इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्री, मतलब इसके लिए पैसा नहीं देना, ये फ्री ही रहेगा. देन हमारे पास आता है प्रो, देन आता है प्रीमियम पर यूजर, को हम शॉर्ट में कहें तो पीपीयू भी बोलते हैं. सॉरी, जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं पावर बीआई प्रीमियम, दिस इज माय सब्सक्रिप्शन. पावर बीआई एम्बेडेड, दिस इज आल्सो अ सब्सक्रिप्शन. ठीक है, वैसे डिटेल में जा सकते हैं अभी, पर थोड़ा शॉर्ट रखूंगा. ठीक है, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ. फ्री की बात करते हैं, जीरो, कुछ नहीं देना, बिल्कुल फ्री. मतलब अगर मैं एज अ लर्नर हूँ, राइट, मुझे कोई कंटेंट बनाना है, कुछ मतलब बनाना है, राइट, और पावर बीआई की सर्विसेज एक्सप्लोर करनी है, मतलब कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ, तो मैं फ्री के लिए जाऊंगा. मैं 1 रुपया भी क्यों दूं, राइट. तो मैं पावर बीआई फ्री की बात करूँ. फ्री अब बड़े लाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ले लो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास 5000 यूजर्स हैं, तो 5000 यूजर्स के लिए लाइसेंस लेना इज वेरी कॉस्टली. ठीक है, तो उस केस में हम कुछ यूजर्स के लिए फ्री भी रखते हैं. फ्री लेना नहीं पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता है. सिंपली एक सिंपल सा लाइक आपको साइन अप करना होता है एंड योर फ्री वर्जन इज रेडी. जैसे कि जो मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो फ्री, पावर बीआई फ्री. ठीक है, पर मेरा थोड़ा सा लग भी है मेरा फ्री नहीं है पूरा. ठीक है, फ्री में आप थोड़े से बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो. आप कंटेंट तो बना सकते हो, उसको पब्लिश भी कर सकते हो, पर जो फ्री यूजर्स होते हैं उनके लिए सिर्फ ये माई वर्क स्पेस ही होता है बस. दिस माई वर्क स्पेस इज ओनली फॉर द फ्री यूजर्स. ठीक है, तो यही वर्क स्पेस है, ये डिलीट नहीं कर सकते आप, ये आपका ही वर्क स्पेस है, आपके पास ही रहेगा. और इस वर्क स्पेस पे जो कंटेंट चला गया वो आप दूसरे यूजर को नहीं दे सकते. इसके लिए पैसा नहीं देना, इसके लिए कोई लाइक ट्रायल नहीं होता है, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली फ्री, नथिंग. कोई 60 डेज की रेंज नहीं है, कुछ नहीं, पूरा फ्री. ठीक है जी, आगे चलते हैं. प्रो की बात करते हैं. यस, प्रो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एडिशन है, अलग से लाइसेंस जिसमें पैसा खर्च करना पड़ता है. प्रीमियम भी वैसे ही आता है. ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपको इसको टेस्ट करना है, राइट, तो आप इसके लिए आपको 60 डेज का ट्रायल मिल जाएगा. मुझे 60 डेज का ट्रायल दिखा था ना, आपने इन दोनों के लिए देखा था. साइन अप आपने फ्री के लिए कर दिया. तो जब भी आप कोई लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई फीचर एक्सप्लोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप नया वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, तो सिस्टम पॉपअप देता है आपको कि साइन अप फॉर 60 डेज ट्रायल, कहता है ना. बिल्कुल बिल्कुल, अपग्रेड टू प्रो करके बोलते हैं. हाँ, अपग्रेड टू प्रो फॉर फ्री, हाँ बोलते हैं, है ना. फ्री से अपग्रेड करना है प्रो में, या प्रो टू प्रीमियम में अपग्रेड करना है आपको, करेक्ट. तो उसके लिए आपको ये दोनों ऑप्शन तब पॉपअप कर जाते हैं. पर आइडली जो प्रो होता है ये अप्रोक्सीमेटली $10 का पड़ता है आपको. एग्जैक्ट में 9.99 समथिंग है. ठीक है जी, मतलब पर यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है, $10 जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर पर मंथ पर यूजर. ये याद रखिएगा, ये दोनों टर्म याद रखिएगा. मंथली है पर यूजर के लिए, सिंगल यूजर के लिए आपने हर महीने $10 देने ही देने. अब बच नहीं सकते, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते. ओके सर, एक चीज अभी मतलब आप ये कह रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं जिनके पास प्रो है, तो 50 के 50 लोगों के लिए सेपरेटली $10 लगेंगे हर मंथ के लिए.
तो ये कुछ हो गया आपके 50 यूजर $10 into 20 $500 हर मंथ देने ही देने हैं। हैं। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये यूजर लेवल पे लाइसेंस मिलता है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन वाइड लेवल पे लाइसेंस नहीं मिलता है। करेक्ट। ओके, ठीक है, तो जो डेफिनेशन लाइसेंस की है प्रो की, सिमिलरली वो प्रीमियम पर यूजर की भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बस $20 एक्स्ट्रा है, मतलब $10 एक्स्ट्रा है, तो $20 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका $1000 मंथली 50 यूजर्स के हिसाब से। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या जाता है? हम प्रो क्यों यूज करें, फिर हम प्रीमियम क्यों नहीं यूज करें, हम प्रीमियम क्यों यूज करें, प्रो क्यों नहीं यूज करें? इस लास्ट वाले में क्या है, ये बाद में एडिशन आया था। एडली हो ये रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रो में जो इनिशियल में दिक्कतें ये थी, ये फीचर तो हैं उसमें, अच्छे खासे फीचर है, पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिसिंग है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, पर वो ले नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम, जो पावर BI प्रीमियम है, इसकी जो कॉस्ट आती है $5000 की आ जाती है। अब इतना कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती, करेक्ट? तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना खर्च नहीं उठा पाएगी, तो मतलब वो प्रीमियम की फैसिलिटी नहीं ले सकती। प्रीमियम में कुछ ऐसी फैसिलिटी आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल यूजर्स के साथ अपना कंटेंट मेल पे भेज सकते हो डायरेक्टली, मतलब सब्सक्रिप्शन का जो ईमेल सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है प्रीमियम में, वो प्रो में नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन बात कर लेते हैं, आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप रिपोर्ट भेजते हो। फॉर एग्जांपल वेंडर्स हैं, वेंडर्स आपकी कंपनी का पार्ट नहीं है, आपके एम्प्लॉइज नहीं होते, वो थर्ड पार्टी होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनके साथ कोई ऐसी कॉमन रिपोर्ट है जो उनको भी भेजी जाती है, तो उनको आप प्रो तो दिलाओगे नहीं, क्यों? आपके लिए तो कॉस्ट है ना $10 एक्स्ट्रा, करेक्ट? और अगर नंबर ऑफ वेंडर बहुत ज्यादा हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में अगर कोई कंटेंट ईमेल के थ्रू उनको भेजना है, जो पावर BI प्रो में जो ईमेल सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है, अगर उसको अवेल करना है तो आपको ये लेना पड़ता है, पर ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है। तो पावर BI प्रीमियम की कुछ फंक्शनैलिटी को उन्होंने क्या किया, प्रीमियम पर यूजर में ऐड कर दिया। प्रो भी है ये और प्रीमियम भी है, दोनों का मिक्स है ये, ताकि जो छोटी स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको इतनी हैवी कॉस्ट बियर ना करनी पड़े, और वो प्रीमियम पर यूजर का यूज करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल XMLA हो गया, उसका बेनिफिट ले सके, प्रीमियम के कुछ फीचर्स का बेनिफिट ले सके, इसलिए ये एडिशन लाइसेंस ऐड किया। क्लियर है गाइस? इतना सर एक चीज पूछना है, एक्सटर्नल, हाँ बोलिए। जैसे पावर BI फ्री वर्जन है और जो पावर BI प्रीमियम है, तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पे डिफरेंस है, तो किस वे में डिफरेंस है? किसी मतलब जो हमें फैसिलिटीज है जो हमें पावर BI फ्री में नहीं मिलती या प्रीमियम में जो प्रो वर्जन में नहीं मिलती है, वो प्रीमियम वर्जन में मिलेगी? करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है? फ्री कब यूज करना चाहिए, प्रो कब यूज करना चाहिए, प्रीमियम कब यूज करना चाहिए, ठीक है? सर एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई जीमेल का आईडी है या याहू का आईडी है, और आपके पास अगर प्रीमियम है सब्सक्रिप्शन, तो आप आउटसाइड AADS योर एक्टिव डायरेक्टरी भी भेज सकते हैं, मतलब डोमेन नेम में नहीं है अगर, तो भी भेज सकते हैं। यस प्रीमियम में। और दूसरा एक चीज ये कि जैसे हमने देखा कि प्रो का $10 पर यूजर पर मंथ है, ऐसे ही क्या प्रीमियम पर यूजर का भी सेम कंसेप्ट है? पर मंथ पर यूजर? करेक्ट, $20 पर मंथ पर यूजर। ठीक है, और जो प्रीमियम का $5000 है, दैट इज आल्सो पर मंथ पर यूजर? नो, दैट वो पूरे एंटायर टेनेंट के लिए होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब आप किसी यूजर स्पेसिफिक नहीं खरीदते। अच्छा, वो यूजर स्पेसिफिक नहीं होता, तो अगर उसमें 5000 लोगों के पास पावर BI है, तो वो 5000 के 5000 लोगों को प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा $5000 से। मैं एक चीज बता दूं, ये पूरा लाइसेंसिंग पे अलग से एक स्लाइड है बाद में, मतलब थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, उसमें भी मेरे ख्याल से 2 महीने बाद कवर होगा, स्टार्ट होगा। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ यहाँ पे, डिटेल में चाहिए। ओके, ठीक।
ठीक है, मैं जानता हूँ क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ मैं, शॉर्ट। ठीक है, ओके। ठीक है शुभम जी, आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5000 यूजर्स हैं, ठीक है, और 10 डेवलपर हैं, ठीक है। अगर मैं मिनिमम प्राइसिंग पे भी चलूं, मतलब $10 के हिसाब से भी चलूं, तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 5000 नंबर ऑफ यूजर्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 यूजर है मेरे, नंबर ऑफ यूजर हो गए। अब नंबर ऑफ डेवलपर ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 10, ठीक है जी। तो इन टोटल मेरे पे कितने हो गए? 5000 10 हो गए। अब इनके लिए, सबके लिए अगर मैं मिनिमम प्राइसिंग पे भी चलूं, मतलब मैं इतना हैवी कॉस्ट बियर नहीं करना चाहता, मैं मिनिमम पे चलना चाहता हूं, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कॉस्ट हर कोई बचाना चाहता है, तो मिनिमम प्राइसिंग पे चलते हैं, मतलब $10 पर मंथ पर यूजर देते हैं। तो आप यहाँ पे इसी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, कितने डॉलर हो गए आपके? $50,000 हो गई, बहुत ज्यादा नहीं है सर। एक चीज तो मतलब जो डेवलपर को चाहिए सेम यूजर के पास भी वो लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो प्रिविलेजेस कर सकते हैं। सिर्फ वो डेवलपर को चाहिए, क्योंकि शेयर तो डेवलपर करता है। डिटेल में आ रहा हूँ, ठीक है। पहले पूरा सिनेरियो समझाता। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि नंबर ऑफ यूजर्स हैं 5000 जिनको रिपोर्ट देखनी है, बनानी नहीं है, और 10 ऐसे यूजर्स हैं जिनको रिपोर्ट बनानी है, डेवलप करनी है, ठीक है। तो मिला के कितना हो गए? 5000 10 हो गए हमारे पास, ठीक है। अगर मैं मिनिमम प्राइसिंग पे जाता हूँ कॉस्ट बचाने के लिए, तो मुझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा, अगर 10 यूजर कंटेंट बनाएंगे तो ऐसे तो दे नहीं देंगे किसी को, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है फ्री में, कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कि खुद तो बना लोगे पर खुद ही के पास ही रखना पड़ेगा, किसी को दे नहीं सकते, फंस गए ना फिर। तो मतलब मिनिमम प्राइसिंग मतलब $10 तो लेनी पड़ेगी आपको। राकेश जी, इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते 5000 जो देखेंगे सिर्फ खाली, हाँ, अगर वो फ्री ले लें? यही तो मैं नहीं, इसी पे तो आ रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 यूजर्स ने रिपोर्ट्स बनाई, ठीक है। अब उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई है, उनको जो बना के 5000 यूजर को देनी है, ताकि ये 5000 यूजर मतलब कंज्यूम कर सके उस रिपोर्ट्स को। अगर मैं प्रो ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सभी यूजर्स के लिए प्रो ले लेता हूँ। प्रो क्यों लेना पड़ेगा मुझे? क्योंकि बिना प्रो के मिनिमम प्राइसिंग पे अगर चलूँ तो बिना प्रो के एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं हो सकती है, मिनिमम ही चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ऊपर वाली प्राइसिंग में आ जाऊँ, $20 पे आ जाऊँ, या $5000 की प्राइसिंग पे आ जाऊँ, ठीक है। इन पे तो आ जाती है, इनमें तो बाय डिफॉल्ट कंटेंट शेयरिंग होती ही होती है, ठीक है जी। फ्री में नहीं कर सकते हम कंटेंट शेयरिंग, यहाँ फंस जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ फंस गए। तो अब 5000 एम्प्लॉइज प्लस 10 मतलब $50,000 पर मंथ देने ऊपर से, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पर मंथ, है ना। तो इस केस में हम पावर बीआई प्रो यूज कर सकते हैं फॉर 10 डेवलपर्स। हाँ, ये तो कर सकते हैं, पर व्हाट अबाउट 5000 एम्प्लॉइज यूजर्स, इनका क्या करें? क्योंकि इनके वजह से तो इतनी हैवी कॉस्ट बन रही है। तो पावर बीआई फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं ये, पर हम इनको अगर फ्री देते हैं, अगर हम फ्री देते हैं 5000 यूजर्स को, पर दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इनके पास तो प्रो है, इन यूजर्स के पास तो प्रो आ गया आपके हिसाब से, आपने बताया ना लाइसेंस। पावर बीआई प्रो तो मैंने इनको दे दिया, इनको मैंने पावर बीआई फ्री दे दिया, ओके। अब इन्होंने तो बना ली, पर ये इनको दे थोड़ा ना पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो फ्री है। इनको देने का फायदा तब है जब इनके पास भी प्रो हो। बिल्कुल सही बात है, बट हमें तो रिपोर्ट शेयरिंग या कंटेंट शेयरिंग की कैपेबिलिटी प्रो में मिलती है, राइट? फ्री में नहीं मिलती। तो फ्री से तो हमें कंटेंट किसी को आगे शेयर करना ही नहीं ना, हमें तो वो कंटेंट रिसीव करके देखना है यूजर्स को। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा बीआई सॉल्यूशन ऐसे ही बनाया है। ओके, वैसे सही बनाया है, देखा है तो ये बनाएंगे, राइट। इनको फीचर चाहिए बनाने के लिए, उसके बिना ये बना नहीं सकते, ठीक है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो मिनिमम
मतलब मिनिमम प्रो तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको। तो इन यूजर ने देखने के बनाया लिए भी और बनाने के लिए भी। ओके ओके कंटेंट अगर देखना भी है, मतलब किसी का बनाया हुआ कंटेंट अगर आपको देखना है तो आपको मिनिमम लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। एरिया में नहीं आते, मतलब आप कहते हो मैं ये नहीं लेना चाहता, बहुत महंगा है मेरे हिसाब से, इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दो कि है नहीं है। मैं सिर्फ इस लाइसेंस पे चल रहा हूँ, इस एरिया में चल रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ तो भाई मेरी कॉस्टिंग बहुत हैवी आ जाती है। तो मतलब ये एक आइडल प्राइसिंग सॉल्यूशन नहीं है मेरे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे फायदा देखा और उसने सब्सक्रिप्शन वाला फीचर लॉन्च किया प्राइसिंग में। तो वो ये कहता है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपके अगर आप ऐसे देखोगे, अगर मिनिमम प्रो ले लेते हो आप, क्योंकि इन्होंने तो बना लिया, अब इनको देना है, इनको अगर कंज्यूम करना है तो इनको भी प्रो दिलाना पड़ेगा, वरना ये भी तो कंज्यूम कर ही नहीं पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ऐसा करो, आप प्रो ले लो 10 प्रो ले लो और इन यूजर्स के लिए फ्री रहने दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनके लिए लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है, इनको तो देखने से मतलब है ना, इनको बनाना तो ही ना है। पर इन एडिशन टू दीज आप प्रीमियम और ले लो, मेरा ये और ले लो साथ में, पावर बीआई प्रीमियम और ले लो, जो इस पूरे को कवर कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो वो 50,000 वाली चीज भी बच गई और फ्री के साथ प्रीमियम भी मिल गया। ओके अभी यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका इन यूजर्स के लिए, तो जो खर्चा है, सॉरी इसको कुछ इस तरह से करते हैं, अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्री वाले के लिए तो 1 रुपया नहीं देना, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम के अंदर इतनी पावर है, सॉरी के अंदर इतनी क्या बोलते हैं उसको, पावर है, प्रीमियम के अंदर इतनी पावर है, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है कि ये बना सकते हैं लाइक अपने कंटेंट को, बस उनको प्रीमियम बना देना है, मतलब उनको एक फ्लैग दे देना है कि जी ये जो कंटेंट है ये प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम बनते ही ये जो फ्री यूजर्स हैं ये प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंटेंट को नहीं देख सकते, ये प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है। और प्रीमियम किसी कंटेंट को आप प्रीमियम का फ्लैग तभी दे सकते हो जो आपने खरीदा हुआ हो प्रीमियम, कि हमारी $100। ऐसे तो हम इसको भी बचा सकते हैं $100 को, जब प्रीमियम हमने ऑर्गेनाइजेशन वाइड ले लिया तो ये 10 × 10 $100 खर्च करने की क्या जरूरत है। पावर बीआई प्रो वाला बंदा जो यूज कर रहा था वो भी प्रीमियम के अम्ब्रेला के अंदर आ गया, तो ये $100 भी बच जाएंगे फिर तो उस केस में। कच्चा गेम नहीं खेलता। मैं दोबारा बता दूं, इसको सब्सक्रिप्शन इसीलिए तो बोलते हैं सर, इस लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन में यही तो फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन एक फ्लैग की तरह काम करता है, एक एडिशन है, आपके लाइसेंस के ऊपर एक एडिशन होता है। आप पावर बीआई प्रीमियम को बिना प्रो और प्रीमियम पर यूजर के यूज ही नहीं कर सकते सर, आपको मिनिमम लेवल पे एक लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, फ्री को छोड़िए, फ्री तो मिल जाता है, या तो प्रो या प्रीमियम पर यूजर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको प्रीमियम की अम्ब्रेला चाहिए। प्रीमियम बस कंटेंट को प्रीमियम बनाता है और उस कंटेंट को फ्लैग करने के लिए, बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिनिमम एक प्रो तो चाहिए ही चाहिए। अब बस इतना याद रखो कि लाइसेंस की कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए हम प्रीमियम, फ्री और प्रो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है सर। पावर बीआई फ्री होता है एंड यूजर्स के लिए, ठीक है, जिनको सिर्फ देखने से मतलब है, पर वो किसी कंटेंट को सिर्फ एक ही सूरत में देख सकते हैं अगर वो कंटेंट प्रीमियम है। प्रीमियम बोले तो एक छोटा सा फ्लैग होता है, डायमंड का फ्लैग होता है, जो फ्लैग आप सिर्फ तभी लगा सकते हो जब आपने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा हो आपकी कंपनी ने। ये किसी यूजर लेवल पे नहीं मिलता है, ये कंपनी लेवल पे खरीदना पड़ता है। प्रो हमारा लाइसेंस की तरह है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट आप दे रहे हो, आपको फीचर मिलते हैं। एक प्रो यूजर या डेवलपर ले लो, अपना बनाया हुआ कंटेंट किसी दूसरे प्रो, प्रीमियम या प्रीमियम पर यूजर को दे सकता है, पर ये फ्री वाले को नहीं दे सकता। मतलब ये प्रो फ्री वाले को तब दे सकता है जब वो कंटेंट आपका प्रीमियम बन गया हो, मतलब इसके फ्लैग के अंडर आ गया। सिमिलरली वही सिनेरियो प्रीमियम पर यूजर पे भी एप्लीकेबल है। या अगर इसमें बाद में भी डिटेलिंग दूंगा मैं, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, ये हमारे तीनों जो हैं, मतलब तीनों कैटेगरीज आते हैं, ये आइटम्स हैं, ये तीनों को हम लाइसेंस कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन एडिशन टू लाइसेंस होता है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ।
पहले तो प्रीमियम में कितने मैं यूजर को प्रो दे सकती हूँ? लाइक एक मेरा 5000 नहीं दिया, सॉरी नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हो। अब जब आप प्रीमियम लेते हो तो प्रो नहीं मिलता आपको। प्रीमियम है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है और प्रो लाइसेंस है। आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, प्रो भी लेना पड़ेगा, और फ्री तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ओके सीधा सा कहूँ तो आप पावर बीआई प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप यूज नहीं कर सकते विदाउट प्रो लाइसेंस। मतलब हाँ, प्रो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि उसकी कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो डेवलपर को चाहिए ही चाहिए। तो अगर 5 डेवलपर हैं और इतने सारे यूजर्स हैं तो हाँ। मुझे प्रीमियम उन यूजर्स के लिए चाहिए जो उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं, मे बी वो रीड कर सकें। और प्रो तो इसलिए कंपलसरी है क्योंकि उससे वो लोग डेवलपमेंट करके उस चीज को शेयर कर पाएंगे। एक चीज पूछनी थी मेरे को, कंटेंट को लाइक प्रीमियम, अच्छा जैसे मैंने यूजर आईडी पर शायद हम देते होंगे कि मैंने प्रो लाइसेंस दे दिया इस पर्टिकुलर आईडी पर, जो कि कंपनी आईडी होगी। अच्छा, यस, 10 लोगों को दे दिया मैंने, ठीक है। हाँ। और फ्री भी, चलो फ्री भी ले लिया उन लोगों ने, लेकिन प्रीमियम मैं दूंगी तो वो किसी आईडी पर मिलता है, मतलब कैसे वो मिलता है प्रीमियम? ग्लोबल एडमिन शायद। नहीं, किसी आईडी पे नहीं मिलता है, वो कैपेसिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, कैपेसिटी जब मैं बोलता हूँ तो मतलब मैं एक सर्वर खरीद रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ एक सर्वर, या एक सर्वर पे स्पेस खरीद रहा हूँ, और उस स्पेस को खरीदने के बाद उस स्पेस पे जितना भी कंटेंट मेरा जाता है, ठीक है, वो प्रीमियम बन जाता है। नहीं, एक चीज राकेश जी, सो फॉर एग्जांपल प्रो का मतलब है पर यूजर पर मंथ है। तो अगर आप और मैं एक यूजर है तो हम दोनों के ईमेल आईडी के साथ टैग हो गया प्रो का। अभी हाँ। प्रीमियम कैपेसिटी जैसे हमने समझी कि प्रीमियम कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए कोई ईमेल आईडी होता है जिस पे प्रीमियम मिलता है? तो मतलब कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम, अभी हर यूजर के लिए एक डोमेन नेम होता है जैसे तो ऐसे ही। और नहीं, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, आप प्रीमियम को लाइसेंस से कंपेयर कर रहे हो, मतलब साथ में सोच रहे हो, पर दोनों एक जैसी नहीं होती है। जो लाइसेंस होता है यूजर से बाउंड होता है, ये एक यूजर को असाइन होता है। प्रीमियम किसी यूजर को असाइन नहीं होता है, वो सिर्फ खरीदा जाता है, वो कंटेंट को असाइन होता है, ना कि एक यूजर को। इसको ये समझिए। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, लाइसेंस इज फॉर यूजर, प्रीमियम फॉर कंटेंट, बस। प्रीमियम इज फॉर कंटेंट। ओके, किसी कंटेंट को प्रीमियम डिफाइन करते हो, बना देते हो। जैसे एक रिपोर्ट है, इसको बोल दो प्रीमियम रिपोर्ट हो गई। अब प्रीमियम रिपोर्ट होने से क्या होता है, फ्री यूजर जो होता है वो भी देख पा रहा है। प्रीमियम होने से क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल जो मेरा यूजर है, जो कंपनी में बिलोंग ही नहीं करता, उसको भी दिखा सकता हूं मैं। ये एक फायदा, क्योंकि कंटेंट प्रीमियम हो गया, उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लैग लग गया है, जिस वजह से उसको ये अथॉरिटी आ गई है या इंडिपेंडेंस मिल गई है कि वो ऐसे सिनेरियो में भी यूज किया जा सकता है जहां पे पहले रेस्ट्रिक्ट कर रहा था वो सिस्टम। आप ओके एक लास्ट चीज, अभी जब हम सब्सक्रिप्शन करते हैं और शेयर पे क्लिक करते हैं, तो शेयर पे क्लिक करने के बाद एक यूआरएल जनरेट होता है, राइट? और वो यूआरएल हम किसी को दे सकते हैं जिससे वो रिपोर्ट देख सके। हाँ। ठीक है, अभी मान लो वो यूआरएल प्रीमियम है हमारे पास, वो यूआरएल मैंने क्लिक किया और वो नहीं, ये वैसे वर्क नहीं। प्रीमियम है, मैं मानता हूँ, कंटेंट शेयर किया जा सकता है, ये भी मैं मानता हूँ, पर शेयरिंग ऐसे वर्क नहीं करेगी जैसा आप सोच रहे हो। लाइक एक एक्सटर्नल यूजर आ गया, वो मेरे एनवायरनमेंट में आके रिपोर्ट देखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, वही प्रीमियम कंटेंट बन जाता है, एक्सटर्नल यूजर को भेजा जा सकता है, पर कोई एक्सटर्नल यूजर मेरे एनवायरनमेंट में आके रिपोर्ट नहीं दे सकता। ये तो फिर वो कैसे देखेगा? जैसे ओके तो शेयरिंग वाला पॉइंट भी बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, मैं यहीं पे रोकता हूँ। तो आपको कोई सवाल है? मेरा प्रीमियम से रिलेटेड ही था एक, मतलब अच्छा, तो वर्क स्पेस हमने जैसे सर्वर पे भी हमने मतलब कुछ प्लेस लिया, कैपेसिटी ले ली हमने। तो अगर जैसे मुझे हमने बोला ठीक है, हमें मिला माइक्रोसॉफ्ट से कैपेसिटी मिल गई आपको, तो वो कैसे हम कहीं तो हम लॉगिन करते होंगे ना, कोई कुछ ऐसे लॉगिन देंगे वो हमें कि भाई इतना स्पेस आपको मिल गया है यहाँ पे, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो जब हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करके हम उसमें मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा
जिसमें मैं Correct. अब जिन जिन रिपोर्ट्स को मुझे प्रीमियम में डालना है मैं उसको वहां से तब आएगा जब मैंने उसको खरीदा होगा उस कैपेसिटी। प्रीमियम में थोड़ा बता देता हूँ। आप किसी रिपोर्ट को प्रीमियम नहीं बना सकते। आप क्या करते हो, रिपोर्ट जहाँ पे होस्ट होती है उस एरिया को प्रीमियम बना देते हो। जैसे वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस एक एरिया है, ठीक है, उस वर्क स्पेस को आप प्रीमियम डिफाइन कर देते हो कि भाई ये जो इस वर्क स्पेस में जितनी चीजें आएंगी वो प्रीमियम अज्यूम हो जाएंगी, प्रिज्यूम कर लेगा सिस्टम कि भाई इसके अंदर आया तो प्रीमियम है, बस ऐसे वर्क करते हैं। ओके, तो मेरे मतलब 10 वर्क स्पेस है उसमें से मैं किसी एक को Environment- प्रीमियम बना दूं। हाँ जी, मीन्स जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है हाँ। वो एक प्रीमियम होगा और एक प्रो वर्जन रहेगा, और जो हमारा जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि रिपोर्ट प्रीमियम है। हमारा एक एनवायरनमेंट प्रीमियम वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके वर्क स्पेस हमारा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे एज डेवलपर का एनवायरनमेंट होता है वैसे तो, जहाँ पे वो अपने कंटेंट को लैंड कराता है, पब्लिश करके वहाँ पे छोड़ देता है। अब उस एनवायरनमेंट में वो जैसे ही मैं प्रीमियम डिक्लेयर करता हूँ, मतलब प्रीमियम का फ्लैग देता हूँ, मतलब प्रीमियम का फ्लैग बोलते डायमंड आइकन असाइन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने डायमंड आइकन असाइन किया उसके अंदर कोई भी कंटेंट या मैं डालूं या कोई और डाले वो प्रीमियम डिक्लेयर हो जाता है। प्रीमियम डिक्लेयर होने के बाद मैं अपने मेरे फ्री यूजर्स को मैं वो कंटेंट दिखा सकता हूँ कि भाई मेरा फ्री यूजर को मैंने असाइन कर दिया व्यूअर रोल, वो आके आराम से देख लेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। मतलब उस यूजर के लिए मुझे कुछ अलग से कोई खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 5000 लोग हैं और सेम टेनेंट है, सबका आईडी सेम होगा, डोमेन मैंने प्रीमियम पे भी डाल दिया, एक वर्क स्पेस में कोई मैंने रिपोर्ट डाल दी, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सारे ही देखें 5000 किसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड है, तो मैं उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट करूंगी? अगर किसी यूजर को, अगर आपको किसी कंटेंट का एक्सेस देना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस यूजर का ईमेल आईडी डालना पड़ता है, एक्सेस देना पड़ता है, उसको व्यूअर एक्सेस देना होता है। जब तक आप ये एक्सेस उसको नहीं दोगे तब तक वो नहीं देख पाता कंटेंट। अगर वो प्रीमियम में भी होगा तो भी नहीं देख पाएगा। नहीं, प्रीमियम तो कंटेंट बन गया ना, अब वो कंटेंट तो बन गया, पर आपने अभी तक ये नहीं बोला ना कि कौन देखेगा उसको, वो तो डिफाइन आपको फिर भी करना पड़ेगा। ओके, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास रहती है, फिर भी हर कोई तभी देख पाता है जब तक आप अलाउ नहीं करते, मतलब एक परमिशन लेवल फिर भी रहेगा। ओके, एक बस लास्ट चीज, अभी जब ऑर्गेनाइजेशन वाइड हमारे पास प्रीमियम कैपेसिटी है, कंटेंट हमारा प्रीमियम बन गया, तो भी कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपना लॉगिन करते हैं तो कुछ कुछ वर्क स्पेसेस के आगे डायमंड का साइन आता है और कुछ कुछ वर्क स्पेसेस के आगे नहीं आता। अरे रुकिए यार, आप तो यार ज्यादा डिटेल में चले जा रहे हो। अरे ये इंट्रोडक्शन है यार। अच्छा ठीक है, मतलब ये आप कवर करेंगे ना, क्योंकि ये ऐसा होता है। अगर आपको जानना है मैं कब कवर करूंगा, मैं स्लाइड दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसमें साथ में एक क्वेश्चन था, अगर हमें एक यूजर को एक्सेस, जैसे आपने बताया एक यूजर को एक्सेस देना, हाँ, तो हम उसकी मेल आईडी डाल देंगे। अगर हमें मल्टीपल यूजर्स को देना है जैसे एक्सेस, तो हम क्या मैनुअली, लाइक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 100 to 150 को एक्सेस देना है, तो सभी की मैनुअली आईडी डालेंगे वहां पे, या फिर कोई वे है कि मल्टीपल यूजर्स को हमें एक्सेस देना, तो एक मैनुअल तरीका? हाँ जी, ठीक, दो तरीके होते हैं। या तो आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, ठीक है, वो आपका Azure एक्टिव डायरेक्टरी में बन जाता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ और मेरे ख्याल से अलाउ तो करता ही होगा, उसे कहते हैं Azure एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप, ठीक है, या फिर आई बिलीव आउटलुक ग्रुप के नाम से उसे बोलते हैं। आप उसको, उसका नाम वहां डाल दो, आउटलुक ग्रुप का नाम वहां डाल दो, वो उसको पिक कर लेता है वहां मेल आईडी की जगह जहां पे एक्सेस देते हैं हम। यस, जैसे एक मेल ग्रुप होता है, आपने देखा होगा, मेल आईडी ग्रुप होता है, कॉमन ईमेल आईडी होती है हमारी, इसमें दुनिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट टीम है, ठीक है, उस सपोर्ट टीम की एक मेल बॉक्स होता है, ठीक है, उस सपोर्ट टीम उस पर्टिकुलर मेल के अंगेंस्ट बैकग्राउंड में 50 यूजर हो सकते हैं जिनको उस पर्टिकुलर आईडी पे मेल रिसीव होंगी, करेक्ट, और बैकग्राउंड में तो 50 है ना, पर एक आईडी के अंगेंस्ट 50 यूजर को आपको वो मिल गया, मतलब एक्सेस मिल जाता है, ये ऐसा है। यस, लाइक एग्जांपल आईटी सपोर्ट जैसे हमारा होता है, और उसमें वहां पे बैकग्राउंड में काफी यूजर्स होते हैं उस मेल आईडी में। बिल्कुल, ओके, ठीक है। सो राहुल जी से आप पूछ रहे थे, तो ये टॉपिक है, ये DQ06 में है, ठीक है, देखिए मैंने आपको कवर कर रखा है। ठीक है।
लाइसेंस पे गया हूँ, सर्विस में गया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे गया हूँ। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो डिटेल लेवल पे बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। थोड़ा बहुत जो रह गया है प्लीज वो बता देता हूँ, बता देते हैं। ओके, जिसको हम कहते हैं पावर बीआई एम्बेडेड। ये नहीं बोला मैंने अभी तक। इसके लिए भी एक यूज केस है वैसे तो, बताने के लिए जो अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समराइज करने के लिए, पावर बीआई एम्बेडेड होता है पे एज यू गो, ठीक है? अब ये कब कब काम आता है? अब कई बार ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर वेंडर्स ले लो। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर वेंडर्स का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है और बेचती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना रही है और बेचती है, गूगल क्या है, सॉफ्टवेयर बनाती है बेचती है, करेक्ट? एग्जांपल ले लेते हैं एससीपी का एग्जांपल, ठीक है? एससीपी ने एक प्रोडक्ट बनाया जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? डेटा वेयरहाउसिंग, मतलब बहुत सारा, मतलब उसका क्या काम है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड जनरेट होते हैं उसकी जनरेशन क्रिएशन में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है? उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें उसका जो कोर बिजनेस है उसने सॉफ्टवेयर में डाला, जिससे वो अपने वेंडर, अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर को बेचता है। पर आज के टाइम पे ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को हैंडल करते हैं, पर यहाँ पे दिक्कत ये आती है इस तरह के सॉफ्टवेयर में कि इसके ये कोर एक्टिविटी के लिए तो यूज हो ही रहा है, या जिस काम के लिए इसको बनाया उसके लिए तो ये यूज हो ही रहा है, ठीक है? डेटा प्रोसेसिंग करने में तो यूज हो ही रहा है। प्रोसेसिंग एज एन रियल टाइम डेटा, मतलब आप इसमें इनपुट कर सकते हो और डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, डेटा को प्रोसेस कर पाता है। एससीपी ऐसे बनाता है, उसका सिस्टम ऐसे होता है। पर अब यहाँ पे उसका जो कस्टमर है वो ये कहता है कि आपने सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा बनाया, पर इसमें अगर आप एक फीचर और डाल देते ना तो मैं जरूर खरीद लेता। वो कहता है कौन सा फीचर? कहता है इसमें डेटा विजुअलाइजेशन का भी एक फीचर डाल दो आप, कि मैं अपने मेरे डेटाबेस में जो डेटा डंप पड़ा हुआ है उसको मैं देखना चाहता हूँ, उस पर मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, वो फीचर और दे दो मेरे को। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा फीचर इस सॉफ्टवेयर वेंडर को बनाना पड़े तो उसका मतलब ये होगा कि उसको अपने सॉफ्टवेयर में एक तो मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे हैवी वाले, ठीक है? उसको अलग से एक टीम बैठानी पड़ेगी जो उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करे, इस पूरे सेटअप को अरेंज करे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है? अब इसके वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ जो डेवलपमेंट का टाइम और बढ़ जाएगा। इसका मतलब मार्केट में अपना प्रोडक्ट को टाइम पे लॉन्च नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? वो वेंडर सपोर्ट कर रहा है जो बना रहा है। उसके कस्टमर का लॉस हो जाएगा क्योंकि कस्टमर को फीचर नहीं मिला तो वो गया, कंपनी गई फिर। क्योंकि आज के टाइम पे डेटा विजुअलाइजेशन अगर सॉफ्टवेयर में ना मिले तो सॉफ्टवेयर काम का नहीं, मतलब ऐसा है। तो उस सिनेरियो में इस तरह की कंपनीज क्या कर सकती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में अलग से डेटा विजुअलाइजेशन की कैपेबिलिटीज को ऐड करे, उसकी जगह पे वो पावर बीआई एम्बेडेड जैसा फंक्शनैलिटी यूज कर सकती है। मतलब पावर बीआई एम्बेडेड क्या करता है, आपके कस्टम एप्लीकेशन के अंदर ही पावर बीआई का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे जो आप कंटेंट बनाते हो, जैसे पावर बीआई सर्विस है जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो जो आप कंटेंट बनाते हो ये सारा का सारा कंटेंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना आप उस कस्टम एप्लीकेशन में ही कर सकते हो। आपको पावर बीआई सर्विस में आने की जरूरत नहीं, वो सब सारा का सारा काम वहीं हो जाएगा, उस कस्टम एप्लीकेशन के अंदर ही हो जाएगा। तो उस केस में हमें इस सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, इसके बिना नहीं हो पाता काम। हाँ जी, मतलब कस्टम एप्लीकेशन में पावर बीआई के एनवायरनमेंट को लाने के लिए हमें पावर बीआई एम्बेडेड चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी आ गई पावर बीआई एम्बेडेड क्या है? मेरे को क्वेश्चन था, मुझे पूछना था, लाइक मतलब कोई यूजर का सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ऐड कर दूंगी, ठीक है, जिससे कि वो विजुअलाइज कर पाए, जो कि पावर बीआई देगा, इसी तरीके से ना? यस। ये हम प्राइसिंग लाइसेंस हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम कम हो गया, अच्छा वो टाइम पे खत्म हो गया। ओके, अब कोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ, कोर्स कैसे चलेगा। ठीक है, जो कोर्स पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर है कोर्स का, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक डेटा की मूवमेंट होती है हमारे पूरे बीआई सॉल्यूशन में। जैसे मैं पहले क्या करूंगा, डेटा मैनिपुलेशन करवाऊंगा, क्योंकि पहले डेटा को इंजेक्शन होता है पावर बीआई में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मेरा पावर क्वेरी होगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊंगा, पावर क्वेरी की छोटी छोटी डिटेलिंग बताऊंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टेबल क्या होती है, लिस्ट क्या होती है। ठीक है, आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो,
स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और लाइक कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को पावर क्वेरी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट फेज में हम डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप, कैलकुलेशन विद डैक्स, उसकी निटिग्रिटी बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोस सीखेंगे डेक्स में, कि डेक्स में डिफरेंट सिनेरियोस क्या में कौन कौन से किस तरह से हम कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं, मेजर्स, कॉलम में डिफरेंस वगैरह बताऊंगा। देन फिर विजुलाइजेशन की बात आएगी कि पहले तो ग्राफ चार्ट बनाएं कैसे, कौन सा ग्राफ कब यूज होता है वो बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंट नेविगेशन सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, लाइक बुकमार्क्स हो गए, नेविगेशन हो गई, वो सब बताऊंगा। फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, लाइक कंटेंट कैसे शेयर किया जाएगा, वैसे आपको पता ही होगा और मैं थोड़ा एड ऑन बता दूंगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन बता दूंगा विद पावर बेस्ड सर्विस, और थोड़ा सा यहाँ पे पावर बी रिपोर्ट बिल्डर, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, मतलब ज्यादा कवर नहीं करूंगा मैं, हार्डली एक छोटा सा ओवरव्यू होगा जिसमें पावर बी रिपोर्ट बिल्डर क्यों यूज करना चाहिए वो बताऊंगा, एक छोटा सा ग्राफ बना के, मतलब छोटा सा विजुअलाइजेशन बना के बता दूंगा। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे एक होगा रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन। यहां तक तो हमारा पूरा डेटा मूवमेंट खत्म हो जाता है इस वाली फेज तक। उसके एडिशन में कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग लेयर्स भी होती है जो हम रिपोर्ट बिल्डर की मदद से ही कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है अगर कोई स्लोनेस आ गई, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है लाइक फॉर एग्जांपल स्लोनेस आ गई या पूरी पावर बी का फाइल बहुत ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। पावर बी में बहुत कुछ है करवाने के लिए, पर इस कोर्स का जो मोटिव है आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक ले जाना, पर एडवांस अभी कोडिंग लेवल तक नहीं ले जाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको रेस्ट एपीआई नहीं करवाऊंगा, पावर शेल नहीं करवाऊंगा, पावर एफ रिपोर्ट बिल्डर ये सब भी नहीं होंगे यहाँ पे, सिर्फ पावर बीआई होगा और ये सारे फेजेस करवाऊंगा। इसमें डेक स्टूडियो नहीं होगा और टैबलेट रन नहीं होगा। ओके। और जैसे हम डाटा इंपोर्ट करते हैं किसी भी डाटाबेस से जी, तो उसके लिए एक नॉर्मल गेट डाटा से करते हैं हम सब। हाँ। तो उसमें कभी कभार हमें MDX भी यूज करना पड़ता है, तो उसकी भी एक बेसिक नॉलेज देंगे या फिर नहीं डेटा सोर्स का इट्स ओनली पावर बीआई। पर वो फिर जैसे होगा ना तो फिर मुझे फिर कोर्स का नाम बदल के बीआई कुछ रखना, बीआई रखना पड़ेगा। ओके। ये फिर पावर बीआई नहीं रहा ना, फिर एज अ बीआई सॉल्यूशन हो गया, बीआई ट्रेनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, ऐसा कुछ नाम रखना पड़ेगा इसका। तो उस केस में फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर वैसा कुछ सिखाना है फिर मैं आपको ETL सिखाऊंगा पहले, फिर मॉडलिंग सिखाऊंगा, फिर रिपोर्टिंग सिखाऊंगा, ऐसे करूंगा। कोई और क्वेश्चन है कोर्स प्लान को लेके, कुछ एडिशन या कुछ नहीं, हटाना तो नहीं होगा एडिशन जो मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि क्या है क्या नहीं है। जो डैक्स वगैरह होंगी उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे ना? हाँ सिनेरियोज है ना, डेक्स सिनेरियोज है। आपको पावर क्वेरी में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के सिनेरियो होंगे, बेसिक और एडवांस, फिर डेक्स में भी होंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है। हाँ, अगर सारी मॉडलिंग वगैरह सारी हाँ होगी। तो मैं ये कह रहा था, अगर आपके पास आपकी कोई कस्टम सिनेरियोज हैं रिलेटेड टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी या फिर रिलेटेड टू डेक्स, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। वो कोर्स में जहां फिट होगा मैं वहां पे बता दूंगा।